اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور دوستوں میں اس کو شیئر کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اوورسیز پاکستانیوں سے ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالرز وطن بھیجنے میں گزشتہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پہلی بار کسی ایک ماہ میں 3 ارب ڈالر سے زائد ترسیلات زر یعنی ریمیٹنس موصول ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ماہانہ بنیادوں پر ریمیٹنس میں 6.7% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال جولائی سے اکتوبر کے دوران 11 ارب 80 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر آئی ہیں۔ سعودی عرب 76 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے ساتھ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ نئی پرنٹنگ مشینیں آنے سے پاکستان کے محکمہ پاسپورٹ کی پرنٹنگ کی صلاحیت دگنا ہو گئی ہے۔ اب 20,000 کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر 40,000 پاسپورٹ پرنٹ کیے جا رہے ہیں۔ 10 نئے پرنٹرز کی مدد سے پروڈکشن صلاحیت میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 40,000 پاسپورٹس پرنٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل یومیہ صلاحیت 20,000 پاسپورٹ تھی۔ 7 مزید جدید مشینیں جلد ہی پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گی۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ برطانیہ میں لڑکیوں سے زیادتی کے واقعات میں ملوث 20 افراد کو مجموعی طور پر 219 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سزائیں برطانوی شہر ہیلی فیکس میں 12 سے 16 سال کی عمر کی 4 لڑکیوں سے زیادتی ثابت ہونے کے بعد سنائی گئی ہے۔ ان تحقیقات میں کئی سالوں پر محیط واقعات شامل تھے، جن میں لڑکیوں کو دھمکی دے کر بلیک میل کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے تھے۔ برطانوی انٹیریئر منسٹری نے انلیگل امیگرینٹس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت حکومت ان افراد کے خلاف کارروائی کرے گی جو پاسپورٹ پھینک کر ڈیپورٹ ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ UK میں جو افراد اپنے پاسپورٹ کو جان بوجھ کر پھینکنے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کو حراست میں لینے کے اختیارات کو بھی بڑھایا جائے گا، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی کوشش ہے کہ پناہ کی درخواستوں کا فیصلہ جلدی کیا جائے تاکہ ان امیگرینٹس کو جلدی سے ان کی قانونی حیثیت کا پتہ چل سکے۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں اٹھائے جا رہے ہیں جب برطانیہ میں تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کینیڈا میں فارنر اسٹوڈنٹ کو 9 ماہ تک کام نہیں ملتا، اور مزید ستم یہ ہوا کہ انہیں فوڈ بینک کی جانب سے مفت کھانے کی سہولت بھی ختم ہو گئی ہے۔ کینیڈا میں خوراک کی بڑھتی ہوئی مانگ نئے خدشات کو جنم دے رہی ہے، اور اب وینکوور کے ایک مقامی فوڈ بینک نے حال ہی میں فرسٹ ایئر کے غیر ملکی طلباء کو کھانا دینے سے منع کر دیا ہے۔ گریٹر وینکوور فوڈ بینک نے کھانے کے طلبگاروں کی تعداد میں روز بروز اضافے کو خوراک کی بندش کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ سینٹرل لاز کے مطابق غیر ملکی طلباء کے پاس کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیوشن اور سفری اخراجات کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں $20,635 ہونا ضروری ہے۔ کینیڈا کے گریٹر وینکوور فوڈ بینک کی ویب سائٹ کے مطابق وہ ہر ماہ تقریباً 15,000 ضرورت مندوں کو مفت کھانا فراہم کرتے ہیں۔ یورپی ممالک کو غیر ملکی لیبر فورس کی شدید ضرورت ہے، اور اپنی لیبر مارکیٹ کو ضروریات کے مطابق پورا کرنے کے لیے یورپی یونین کے ممالک نے ورک پرمٹ اور شہریت یعنی نیشنلٹی کے قوانین کو تیزی سے آسان بنایا ہے۔ مگر دوسری جانب اگر کسی امیدوار کا مجرمانہ یعنی کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ یورپی یونین کے 5 ممالک میں شہریت حاصل نہیں کر سکتے، جن میں جرمنی، آسٹریا، نیدرلینڈ، سویڈن اور ڈنمارک شامل ہیں۔ سویڈن میں کرمنل فرد کو جرم کرنے کے بعد شہریت کا اہل بننے سے سالوں کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، جب اس کے برعکس
जर्मनी में सख्त कवानीन है और वहाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर को सजा के बाद डिपोर्ट ही किया जाता है। जर्मनी में दहशतगर्दी यानी टेररिज्म और साम दुश्मनी यानी यहूदियों की मुखालफत नाकाबिले माफी जुर्म समझे जाते हैं। इटली के शेंगन वीजा की इन 3 ममालिक में मंजूरी यानी एक्सेप्टेंस की शरह सबसे ज्यादा है। इन ममालिक में बेलारूस, जिम्बाब्वे और इंडोनेशिया शामिल है। इन तीनों ममालिक के लिए इटली के शेंगन वीजों की मंजूरी की एवरेज 99 से 98% के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। इन 3 ममालिक के अलावा साउथ अफ्रीका और वियतनाम भी शेंगन वीजों के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस की शरह के साथ टॉप 5 ममालिक में शामिल है। याद रहे कि इटली वीजा की एप्लीकेंट्स के लिए एक अहम मंजिल है जहां सबसे ज्यादा दरखास्तें कबूल की जाती हैं और इटली का वीजा देने में शेंगन एरिया में चौथा नंबर है। इटली को वीजा के लिए 2023 में 1.1 मिलियन वीजा एप्लीकेशन मौसूल हुई थी, जो 2023 में तमाम वीजा एप्लीकेशन का 10.7% है। इटालियन शेंगन वीजा के लिए एप्लीकेंट्स की अक्सरियत का ताल्लुक चीन, रूस और तुर्की से होता है। इटली 2025 में केयर वर्कर्स को मजीद 10,000 वीजे जारी करेगा। इटालियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क गैर मुल्की केयर वर्कर्स यानी देखभाल करने वाले कारकुनों को वीज़ों की तादाद बढ़ाने का मंसूबा बना रहा है। ताहम वीज़ों की तादाद में इजाफे के साथ ही सख्त कवानीन नाफिज़ अमल होंगे और ऐसे ममालिक के एप्लीकेंट्स जिनके शहरियों को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ दरखास्तें जमा कराने का ज्यादा खतरा समझा जाता है, उन पर मजीद सख्त इक़दामात के तहत कार्रवाई की जाएगी। इटली 2025 में फॉरेनर वर्कर्स को 1,65,000 वीजे देने का इरादा रखता है। ये रवां साल 2024 और 2023 के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा है। इटालियन हुकूमत ने सीजनल वर्कर्स के लिए भी कोटा मुकर्रर किया है। 2025 में तकरीबन 93,550 सीजनल वर्कर्स इटालियन शेंगन वीजा हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब फॉरेनर सीजनल वर्कर्स के लिए रवां साल में वीजों की तादाद की हद 89,050 मुकर्रर की गई है। अमरीकियों की बढ़ती हुई तादाद ने पुर्तगाल के गोल्डन वीजा प्रोग्राम की तरफ अपनी नजरें मोड़ ली हैं, जिसकी वजह हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात और दीगर मुख्तलिफ अवामिल है। अमरीकी एप्लीकेंट्स के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के इख्तियारात दस्तयाब न होने के बावजूद इस प्रोग्राम में अमरीकी शहरियों की दिलचस्पी ज्यादा हो गई है। ट्रंप के यूएसए के सदर मुंतखब होने के बाद जहां कुछ अमरीकी बाशिंदे पुर्तगाल का इंतखाब करते हैं, वहीं दीगर सोशल और इकनॉमिक फैक्टर भी शामिल है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेजिडेंट ओवरसीज के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर 2023 में कम अज कम 5.4 मिलियन यानी 5,40,000 अमरीकी बैरून मुल्क मुकीम थे, जिनमें से एक काबिल जिक्र तादाद ने जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपीय ममालिक का इंतखाब किया है। जब कि यूरोप में रिहाइश और शहरियत हासिल करने की बात आती है तो गोल्डन वीजा प्रोग्राम की बुनियाद पर पुर्तगाल सबसे ज्यादा मतलूब ममालिक में से एक है। स्पेन के सूबा वालेंसिया में दाना सैलाब से 89 मिसिंग अफराद को सरकारी तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है, जिनका इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेडिसिन में पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन 62 की शनाख्त अभी पेंडिंग है। स्पेन के इलाके अलकसीरा से 13 टन हशीश पकड़ी गई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। हस्पानवी पुलिस ने यह रिकॉर्ड कोकीन केले के पैकेटों से बरामद की है, जो इक्वाडोर से आई थी। स्पेन की नशे पुलिस ने बताया कि यह ड्रग्स की जब्तगी यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी मिकदार है। वालेंसिया में दाना सैलाब के दौरान लूट मार करने वाले एक गिरोह के 5 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से चोरी शुदा अशिया बरामद कर ली हैं, जिनकी कीमत निस्फ मिलियन यूरो से ज्यादा है, जिनमें जेवरात, महंगी तरीन घड़ियां और दीगर कीमती अशिया शामिल है। गिरफ्तार किए गए अफराद में 4 मर्द और 1 औरत शामिल है और इनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। स्पेन के जजीरे कनारिया आइलैंड में इमदादी कारकुनों ने 375 इमिग्रेंट्स को बचा लिया, जबकि 1 हलाक हो गया। मैरीटाइम रेस्क्यू ने कनारिया आइलैंड में एक छोटी कश्ती और 4 प्लास्टिक की कश्तियों को रेस्क्यू किया था। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 931-392-341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट,
बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। कतालान सूबे केदाकोस में आज सुबह जुमा के रोज आने वाले तूफान के बाद कारें बह गई। 100 मिलीमीटर बारिश के बाद यहां तकरीबन 30 गाड़ियां बहकर ढेर हो गई। पानी कुछ घरों में दाखिल हो गया जो नदी के करीब हैं। फायर फाइटर्स ने तमाम गाड़ियों को चेक किया और तस्दीक किया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बार्सिलोना में फ्लैट पर कब्जे के इल्जाम में पुलिस मोसद एस्क्वाद्रा ने सान मुंजुई के इलाके में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान ने जिस वक्त मकान पर कब्जा किया उस वक्त 90 साला मालका मकान अस्पताल में जेर इलाज थी। इमिग्रेशन की बदौलत स्पेन की आबादी 49 मिलियन यानी 4 करोड़ 90 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 1 अक्टूबर 2024 तक स्पेन की आबादी 4 करोड़ 89 लाख 46,035 बाशिंदों तक थी, जो कि मुल्क के आबादियाती आदादो शुमार के मुताबिक अब तक की बुलंद तरीन सतह है और इसकी वजह इमिग्रेंट्स की बढ़ती हुई तादाद है। 2024 के थर्ड क्वार्टर के दौरान सबसे ज्यादा इजाफे वाली कौमियतों में कोलंबिया पहले नंबर पर है, जिनकी तादाद 34,600 है। इसके बाद 25,500 के साथ मोराक्शियों की तादाद दूसरे नंबर पर है। स्पेन अगले साल जनवरी 2025 से गोल्डन वीजा बंद कर देगा, यानी जनवरी 2025 से स्पेन सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के बदले गोल्डन वीजा प्रोग्राम के जरिए न्यू रेजिडेंट परमिट्स नहीं देगा। स्पेन ने हाउसिंग क्राइसिस से निपटने के लिए रियल एस्टेट सरमायाकारी के ऑप्शन को खत्म करने का ऐलान किया है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के खात्मे के बावजूद स्पेन के गोल्डन वीजा की मांग बदस्तूर ज्यादा है, क्योंकि रिहाइश के असूल में दिलचस्पी रखने वालों के लिए स्पेन यूरोप के मशहूर ममालिक में शामिल है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये खबरनामा पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।